I welcome you all in the HP Board of Departmental Examination Preparation Paper 1 Financial Administration. So in this video we are going to discuss a previously asked question, and this question was asked in September 2020. The question was, as per HP Treasury Rules 2017, what is the procedure for withdrawal of amount on account of loss through misappropriation, defalcation, embezzlement, etc. So let's see this question from HP Treasury Rule 2017. As you can see, these are the HP Treasury rules, and let me show you the document again. So yes, these are HPTR 2017, and in the page number 50, there is a mentioning of mode of withdrawal and classification on account of amount redrawn owing to the loss through misappropriation, defalcation, embezzlement, etc. So let's read this out and clear the concepts. The redrawal of amount on such occasion, pending further action regarding investigation, etc., and recovery, if any, of the loss shall require a specific sanction of the authority competent to write off the loss in question in terms of the provision of HP financial rules in each case. And that amount so sanctioned shall be drawn on a simple receipt containing information given in Annexure 5. The drawal or withdrawal of the amount so sanctioned shall not require any special authority from AG, ANEHP to the DTO and TO. In the accounts, the amount so redrawn shall be classified as special advance under the major head that is known as the 8550 Civil Advance 104 Other Advances under section K of Deposit and Advances. तो आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, समझ में शायद नया ना आया हो, तो इसको समझने से पहले हमें ऊपर रूल समझना पड़ेगा, तभी ये चीज समझ आ सकती है। तो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 5 देखिए, चैप्टर 5 के अंदर बात कर रहा है। Chapter 5 says withdrawal of money from consolidated fund, contingency in public account. तो HPTR 2017 के चैप्टर 5 के अंदर ये चीजें दी है, पहले हमें ये समझने पड़ेंगी तभी वो चीज समझ आ सकती है। तो देखते हैं, मनी कैन बी ड्रॉन फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड पब्लिक अकाउंट थ्रू ट्रेजरी इन टू वेज, बाय बिल और बाय चेक। ये बोल रहा है कि कंसोलिडेटेड फंड से या पब्लिक अकाउंट से दो तरीके से मनी ड्रॉन कर सकते हैं, बाय बिल्स और बाय चेक से। सबसे पहले देखते हैं, अगर हम बिल्स की बात करें तो देयर आर सम जनरल इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग द प्रिपरेशन फॉर्म्स ऑफ द बिल। ई बिल shall be used for raising of a bill as per different processes like this. DDO सबसे पहले क्या करेंगे, DDO shall use the online access in the e-bill to raise the bill online, bill raise करेंगे, online access देंगे। The process of preparing the bill offline shall be limited to those only item which are not available on e-bills. तो offline सिर्फ उन्हीं items के लिए किया जाएगा जो available नहीं है e-bill में। DDO shall use their login credential to access the bill creation facility in the module. तो एक मॉड्यूल होता है बेसिकली, एक स्पेशली DDoS के लिए लॉगिन करके वो बिल क्रिएशन फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, DDO shall then select the type of bill that he needs to create. तब वो बिल सिलेक्ट करेंगे, उनको कौन सा बिल क्रिएट करना है। फॉर एग्जाम्पल HPTR 5 as specified in the e-bill, HPTR 5 या HPTR 5A को पे क्लिक करेंगे, उसको जनरेट करेंगे, बेसिकली क्रिएट करेंगे, देन चेंज फॉर्म फॉर पे बिल। Then all kind of bill other than the salary, that is gratuity, leave, encashment, etc. shall be prepared from HPTR 5. तो वो सारे के सारे HPTR 5 से बनाए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, the DDO shall fill the details as per online form. All the mandatory fields shall be filled as per the requirements of the form. Then the budget head details as per the requirements of the application form shall be auto-populated based upon the type of bill they prepared. तो ये बेसिकली कंप्यूटराइज सिस्टम है, उसमें जैसे ही आप डिटेल डालेंगे सारा का सारा ऑटो पॉपुलेटेड जो डाटा है अपने आप आ जाएगा। DDO shall only be able to raise the bill in the current date only. So back date and the future dated bill shall not be allowed to be raised in the treasury module. This is very important. कभी भी बैक डेट का और फ्यूचर डेटेड बिल कभी भी अलाउड नहीं किया जाएगा। Till such time AGHP accept completely electronic bill and all the DDO shall print the bill form generated online, sign and stamped it and sent to the treasury for further processing.
then a unique token shall be generated once the DDO submits a printed and signed copies of the bill. तो इस तरह से बिल को मतलब ई बिल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो जनरल प्रिपरेशन ई बिल्स का है ये। ध्यान रखिए हम पढ़ के रहे हैं, विड्रॉल ऑफ मनी, मनी निकालने की बात करें किससे, कंसोलिडेटेड फंड से, कंटीजेंसी फंड से, पब्लिक अकाउंट से। उसके मेथड्स हैं जैसा कि हमने देखा, तो उसके मेथड्स हैं ई बिल या फिर चेक से। तो ये सिस्टम है जिसमें ये प्रोसीजर बताया हुआ है। नेक्स्ट आ गया, नो करेक्शन इन प्रिंटेड बिल जनरेटेड थ्रू ऑनलाइन शैल बी अलाउड। सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑल द करेक्शन अल्टरेशन इन द मैनुअल बिल शैल बी अटेस्टेड बाय द फुल सिग्नेचर। अगर बिल में कोई दिक्कत है, किसी तरह का करेक्शन रिक्वायर्ड है, तो उसको कर सकते हैं, ठीक, लेकिन विद फुल अटेस्टेशन एंड द फुल सिग्नेचर ऑफ द पर्सन साइनिंग द बिल। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, चेंजेस या चार्जेस अगेंस्ट टू और मोर सब हेड्स एंड एसओई शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द बिल। तो इस तरह से ये चीजें बिल में नहीं आएंगी। द बिल requiring sanctioning special authorization of the competent authority shall be accompanied by duly certified copies of the same। अगर किसी बिल में आवश्यकता है competent authority के sanctions की, तो वो बिल के साथ अटैच की जाएंगी। The bill shall be within its validity period at the time barred claim shall be accompanied by the authorization from the competent authority as provided in the HPFR। This is again very important, उसकी within validity में उसको काम करना है। The bill shall be accompanied by the required schedules as per specified by instruction by the government from time to time। Very important। तो आपको पता लगा होगा कि किस तरह से हम विड्रॉ कर सकते हैं इन अकाउंट्स में से। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, दैट इज मोड ऑफ ड्रॉल और क्लासिफिकेशन। ड्रॉल का मोड क्या रहेगा, ऑन अकाउंट रीड्रॉन ओइंग टू द लॉस ऑफ थ्रू मिस एप्रोप्रिएशन। किसी भी तरीके से मिस एप्रोप्रिएशन या एम्बेजलमेंट हो जाए, उस स्थिति में क्या किया जाएगा। पहले मतलब समझते हैं मिस एप्रोप्रिएशन का क्या है। देखिए, द एक्शन ऑफ मिस एप्रोप्रिएटिंग समथिंग और एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट का मतलब क्या होता है, देखते हैं। अब आपको याद हो गया होगा, एम्बेजलमेंट मतलब गबन, गलत तरीके से किसी चीज को यूज करना, गबन करना, घोटाला करना। तो उस स्थिति में क्या किया जाएगा, एज द रूल सेज। इसमें गौर करिए, एनेक्सर 5 आपको याद रखना है इस अवस्था में, फॉर्म फॉर रीड्रॉल ऑफ अमाउंट ड्यू टू थेफ्ट, मिस एप्रोप्रिएशन और एम्बेजलमेंट। नंबर रहेगा सबसे पहले हेड ऑफ अकाउंट्स, जिसकी हमने बात की थी 8550, सिविल एडवांसेस -104, अदर एडवांसेस, स्पेशल एडवांसेस STATE, रिसिप्टेड सम ऑफ रुपीज इतना, बेरिंग द अमाउंट सैंक्शन टू रीड्रॉल अंडर हेड डेटेड इतना। उसमें हेड और डीडीओ साइन करेंगे, ऑफिस की स्टैंप आएगी, और ये सिर्फ फॉर द यूज इन अकाउंटेंट जनरल ऑफिस के लिए रहेगा। तो ये फॉर्म नेसेसरी है उस अवस्था में, एनेक्सर 5। तो आई होप थोड़ा आपको आइडिया हुआ होगा कि एक एनेक्सर 5 है, ऐसी अवस्था में जब गबन हो या किसी तरीके से मिस अप्रोप्रिएशन हो जाए अमाउंट का, तो उस अवस्था में एनेक्सर 5 के माध्यम से ये चीजें की जाएंगी। और एक स्पेशल एडवांस, एक हेड बनाया जाएगा स्पेशल एडवांस के नाम से अंडर द मेजर हेड। तो उसके लिए ये क्लोजेज आपको याद रखने हैं। तो आप याद रखिए, चैप्टर 5 के अंदर दे रखा है, और चैप्टर 5 के अंदर ये क्लोजेस हैं एम्बेजलमेंट का। तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में, तो आपको सिंपली ये रूल याद रखना है कि क्या किया जाएगा, और एनेक्सर 5 आपको हमने दिखा भी दिया। एक बार फिर से देखिए एनेक्सर 5 को, तो हियर इट इज एनेक्सर 5। तो ये वाला सेक्शन, ये वाला हेड ऑफ अकाउंट आएगा, दैट इज द 8550 सिविल एडवांसेस, 104 अदर एडवांसेस, स्पेशल एडवांसेस स्टेट। ठीक है, आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस एंड लिसनिंग।